ہم تو وہاں قدم نکالتے ہیں جہاں شراب کی بوتلیں کھنکتی ہیں، ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں جوئے کے اڈے بسائے جاتے ہیں، ہمارا قدم تو وہاں پڑتا ہے جہاں کرکٹ کا بورڈ لگایا جاتا ہے، ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں مستورات کھلے عام گھومتی ہوں، ہم تو ان بازاروں کی رونق بنتے ہیں جہاں پر شیطان کا بازار لگتا ہے، ہم ویسی محفلوں میں کہاں جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہماری مسجدیں خالی ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ مسجدوں میں جاتے ہی نہیں، اسی وجہ سے تو روزے کے ایام میں لوگ کھلے عام کھاتے پھرتے گھومتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو جاہل پیر پھنسا کے لے جاتے ہیں، نماز تو پڑھتے نہیں، کبھی مولانا صاحب کی تقریر تو سنی نہیں، ایسے وقت میں پہنچے جب خطبہ جاری تھا، نہا دھو کے ایسے پہنچے کہ بس جائیں گے 2 ٹیبلٹ کھائیں گے واپس آئیں گے، تقریر تو کبھی سنا نہیں، مجلسوں میں کبھی آئے نہیں، تو بابا جی پیئر پہن کے آ گئے، پھنسا لے گئے، آسان سا کام ہے نا۔ ایک کرامت دکھائی اپنی جھوٹی والی، ایک شوبدہ دکھایا، بیچارہ پھنس گیا الو کی طرح، پنجرے میں قید ہو گیا، ناچ رہا ہے ساتھ میں وہ بھی۔ ملت آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ ہم تو سمجھ نہیں پاتے کہ زیادہ بیوقوف وہ ہیں جو پھنسا رہے ہیں یا زیادہ چوگت وہ لوگ ہیں جو پھنس رہے ہیں۔ اتنی عقل نہیں ہے کہ مسلمان ہونا اسلام کی باتوں کا ترازو شریعت ہے، ہم سرکار کی امت ہے نا، مصطفیٰ یعنی رحمت پر ایمان لائے ہیں نا، ایمان ایسے ہی مل گیا ہے کیا آپ کو؟ بڑی اذیتیں جھیلنی پڑی ہیں، بڑا دکھ جھیلنا پڑا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہے، تب اسلام کا ہم تک پہنچا ہے۔ یاد نہیں ہے ہمارے آقا نے تنہا اسلام کا اعلان کیا تھا تو حال کیا ہوا تھا؟ ہمارے نبی کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، سرکار کے سر پہ کوڑا ڈالا گیا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر غلاظتیں ڈالی گئی تھی، سرکار کے گردن میں رومال ڈال کے کھینچا گیا تھا، ان کے قتل کی سازشیں ہوئی تھی۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ سرکار کے گھر کو جتنے بھی کفار تھے ان کے نوجوان بچوں نے ننگی تلوار لے کے گھیر لیا تھا، آقا کو شہید کرنے کا برا پلان تھا۔ ارے ایسا دور آیا تھا کہ جس جگہ پیدا ہوئے تھے سرکار، اس گھر کو چھوڑنا پڑا تھا، ان بستی کو چھوڑنا پڑا تھا، ان گلیوں کو چھوڑنا پڑا تھا، ان دوستوں کو چھوڑنا پڑا تھا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے سرکار کو جانا پڑا تھا۔ آسان سمجھتے ہیں آپ مسلمان ہونا؟ گھر بیٹھے بیٹھے اسلام مل گیا، ابا نے مسلمانی کرا دیا تو جناب سب سے بڑے مسلمان ملے؟ مسلمان نہیں ہوئے، ایسے اسلام ہوتا ہے؟ ناراض ہوئے گا بھائی نے؟ ناراض ہوئے گے؟ ناراض ہوئے بتائیے بھائی، یہ ہمارا کام تو بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جواڑیوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں، بے نمازیوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں، شرابیوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں، قبائل بازیاں کرنے والوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں بھائی، جاہلوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو رسول اللہ کے دین کی بات کریں گے نا۔ برا مکے میں بھی لگا تھا، ہمارے آقا کو سب سے سچا کہا جاتا تھا، ہمارے نبی کو سب سے امانت دار کہا جاتا تھا، جس وقت سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا سب سے اچھا ہمارے نبی کو بولا جاتا، مگر جیسے ہی سرکار نے کہا کہ تم غلط کام کرتے ہو، پتھروں کے آگے سر جھکاتے ہو، تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں، وہ سب سرکار کے دشمن ہو گئے۔ پتا چلا حق جب بولا جاتا ہے تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ حق بول کے دیکھیے نا، اپنے گھر میں بول کے دیکھیے، اپنے بھیا سے بول کے دیکھیے، اپنے دوست سے بول کے دیکھیے، پھر دیکھیے ایک دم جو پٹتی تھی ختم ہو جائے گی۔ جو بڑا آپ کا جگری دوست ہو نا، آپ کا جو لنگوٹیا یار ہو، آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہو، ایک دن کہہ کے دیکھیے کہ بیٹا تم نماز پڑھو گے تب ساتھ رہیں گے، ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اچھی باتیں جس دن کرنے لگے گیا، سچائیاں جب بولنے لگے گیا، زمانے کے نگاہ میں کھٹکنے لگے گیا۔ آقا اسی لیے کھٹکے تھے ہمارے، مکے سے اسی لیے نکالا گیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی، سچ بولنا۔ اگر ہمارے نبی نے
सच ना बोला होता तो नहीं निकाले जाती। उन लोगों ने तो बाकायदा तिजोरियां खोल दी। अबू तालिब से कहलवाया कि अपने भतीजे को कह दो अगर उसको बादशाहत चाहिए तो हम बच्चा बना लेते हैं, अगर उसे पैसा चाहिए तो हम तिजोरियां भर भर के उसको पैसे देते हैं, अगर खूबसूरत औरत की ख्वाहिश है तो अरब की जो सबसे खूबसूरत औरत होगी उसे निकाह करा देते हैं उसका। मगर हमारे देवताओं को बुरा कहना छोड़ दे, काबे के अंदर जो बुत लगे उनको गलत कहना छोड़ दे, हक बोलना छोड़ दे। अबू तालिब ने सरकार से कहा कि मक्के वाले आए थे, बड़े बड़े सरदार थे, पैसे वाले, दौलत वाले, बादशाह वाले, सबने ये प्रपोजल रखा है। आका ने फरमाया अबू तालिब मेरे चचा, अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दिया जाए दूसरे में चांद रख दिया जाए तब भी हक बात करना नहीं छोड़ूंगा। अगर उलमा हक ना बोले, अल्लाह के रसूल के शरीयत वाले हक ना बोले, जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो हक ना बोले, जो हदीस का दर्स देते हैं वो हक ना बोले, जो लोग सच्चाई की बात मानते हैं वो हक ना बोले, जाहिल भी बोलेगा, बेशक सुभान अल्लाह, नाचने वाले लोग बोलेंगे, जुए के अड्डे में जाने वाले लोग बोलेंगे। लगता है बुरा, मैं किसी का खाता नहीं हूँ, अपने मालिक का खाता हूँ। मेरी जेब भी वही भरता है, मेरा पेट भी वही भरता है, मेरे घर में राशन भी वही पहुंचाता है। अरे मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ, वो बोलूंगा जो अल्लाह के रसूल के हदीस से मैंने सीखा। मिसाल बदल गया, मैं कुछ और बोलना चाहा था, कुछ और सोचा था और अब बोलूंगा कुछ अलग। मालूम है हमारे आका सरकार बगदादी में भी है ना, जिनका तज़किरा हो रहा है, जिनको पीराने पीर कहा जाता है, जिनके नाम से फातिहा दिलाया जाता है, जिनको सबसे बड़ा वली माना जाता है, जो वलियों के सरदार हैं, जिनका कदम कदम पे या गौस कहकर नाम लिया जाता है। सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे हैं, रास्ते में एक बादल आ गया, बड़ा रोशन था, बड़ी चमक निकल रही थी। सरकार बगदाद मुतवज्जह हो गए, क्या है ये? बादल से रोशनी फूटी, इतने में आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूँ। सरकार सुनते रहते, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, रब्बुल आलमीन हूँ। सुनो अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे अमाल से खुश हो गया हूँ, अब जाओ, मैंने शरीयत में जो चीजें हराम थी वो सब तुम पर हलाल कर दी है। सुभान अल्लाह। सरकार बगदाद ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अरे जो चीजें हमारे नबी पे हलाल ना हुई अब्दुल कादिर पे कैसे हलाल हो जाएंगी? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बादल से नूर निकल रहा था तारीकी में बदल गई, आवाज आई अब्दुल कादिर मैं इब्लीस हूँ, इस जगह मैंने बहुत सारे बड़े बड़ों को बहका दिया है मगर तुम्हारे इल्म ने तुझको बचा लिया। आपने इरशाद फरमाया अरे कमीने तू आज भी मुझको धोखा देना चाहता है, मेरे इल्म नहीं बल्कि मेरे रब के फज़ल ने बचा लिया, अल्लाह के करम ने बचा लिया। शरीयत के अहकाम जब सरकारें बगदाद में माफ नहीं हो सकते, वलियों के जो सरदार हैं जब हमारे नबी पे शरीयत के अहकाम वो माफ नहीं हो सकते, तो ये पीर कहते हैं शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, हमारा रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, इनकी नमाज अलग है, हमारी नमाज अलग है। शर्म नहीं आती। चलो वो तो बेशर्म है, वो तो बेहया है, मगर जो उनके पीछे जाते हैं उनके शर्म नहीं आती। एक मस्जिद के लिए लोग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों का जनाजा अपने कंधों में उठा रहे हैं, खून से उनके जमीन को रंगीन की जा रही है, उनके बच्चों को उनको सामने काट दिया जा रहा है, उनकी औरतें बेवा हो जा रही है, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, किस लिए? एक मस्जिद के लिए, वहां नमाज पढ़ने के लिए। और ये कहते नमाज जरूरी नहीं है, ये कहते हैं नमाज उनकी अलग हमारी नमाज अलग है। तेरी मस्जिद कहाँ है? हमारी मस्जिद तो फिलिस्तीन में है, हमारी मस्जिद तो मक्का में है, हमारी मस्जिद तो मदीना में है। हमारे आका जब मदीना पहुंचे थे तो आका ने पहला काम यही किया था कि सरकार ने मस्जिद बनाई थी। अगर तेरी नमाज अलग है, हमारी नमाज अलग है, तो सुन ले तेरा धर्म भी अलग है, हमारा धर्म भी अलग है। हमारा मजहब इस्लाम है, तेरा कोई और धर्म होगा, तेरा कोई और रहनुमा होगा, तेरा और कोई पेशवा। हमारे पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह
हमारे आका सरकार बगदाद हैं। हम अल्लाह की बातें मानते हैं, हम कुरान की बातें करते हैं, हम हदीस पाक का चाम पिलाते हैं। मुसलमानों, क्या वक्त नहीं आया है कि मुसलमान बदल जाए? अभी आपको लगता है ये छोटे छोटे लोग आपको बहका ले जाते हैं, तो जब बड़का आएगा तब क्या हाल होगा? पता है आपको? ये छोटे छोटे बहका लेते हैं, ये झुकते बड़े बड़े झोटे रख के, अजीब सा कपड़ा पहन के, बड़े बड़े माने के गुड़िया डाल के, मोतियों के बड़े बड़े गट्ठर में ढका के हम जैसे अक्लमंद लोगों को बहका लेते हैं। तो बड़का आएगा जो इस्राइल के पास रहेगा, जिसका नाम दज्जाल है, फिर क्या होगा? इनके पास तो कुछ नहीं है, उसका हाल तो ये होगा, जमीन से कहेगा चल सब्जा उगा दे, बस सब्जा उग जाएगा। आसमान से कहा रुक मत, बारिश कर दे, बारिश हो जाएगी। जहन्नम और दोज़ख, जन्नत उसके साथ चलेंगे, जो कहेगा होता जाएगा, जमाना उसके साथ मिलता जाएगा। उस वक्त हमारा क्या होगा कि जब हम जैसे बेवकूफों को ये छोटे छोटे बंदर नचा देते हैं, तो फिर वो कैसे नचाएगा? बाकी रहेगा ईमान हमारा। अगर ऐसे ही कमजोरी रहेगी, अगर हम ऐसे कमजोर बने रहेंगे, तो जमाना हमको नचाता रहेगा। ये जान लेना, पूरी दुनिया में इस्लाम का सिर्फ एक मेयार है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत है, हमारे नबी की शरीयत है, कुरान है। जो कुरान से हटके बातें करे, जो शरीयत मोहम्मदी से हटके बातें करे, समझ जाओ ये कोई और है, कोई मुसलमान नहीं है। बताओ, हमारे आका सरकार बगदाद मौलाना है, हमारे आका खुद बड़े बड़े मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना, सबसे बड़े मौलाना हमारे आका फारूक आजम मौलाना है, अबू बकर सिद्दीक मौलाना है, मौला अली सब मौलानाओं के मौलाना है। सरकार में हुसैन मौलाना है, में हसन मौलाना है, सरकार गौसे आजम मौलाना, में आजम अबू हनीफा मौलाना, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी मौलाना, सरकार वाला हजरत भी मौलाना। जितने गिनते जाओ सब शरीयत वाले हैं, और जो कहता है शरीयत अलग है, हकीकत अलग है, वो मुस्तफा वाला नहीं, शैतान वाला है। गुरुदेव पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मादरी जिदवल करम वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, हकीकत पसंद बन जाओ, हकीकत पसंद। अगर आपने इस्लाम माना है तो सच्चे दिल से मानो। कोई बात मानने के बाद आदमी फिरता नहीं है। जब इस्लाम के मजहब को मान लिया है, मुसलमान इसलिए हो कि आप कुरान को पूरा मानते हो, मुसलमान आप इसलिए हो कि नबी की शरीयत पर ईमान रखते हो, तो बदल क्यों जाते हो यार? क्यों बदल जाते हो? बदलने का नहीं है। सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल है, माशाअल्लाह। अभी मौलाना अब्दुल समद ज़ियाई साहब ने माशाअल्लाह आपसे हमने खूब अच्छा बयान किया है, और रात भी ज़्यादा हो गई है, तो मैं ज़्यादा देर इंशाअल्लाह बयान नहीं करूँगा। बस ये है कि कुछ काम की बातें बता दूँगा, ठीक है? गुरुदेव पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मादरी जिदवल करम वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना, आज आपको अपनी दोस्तियों पे बड़ा नाज होगा। आपके 4-5 चमचे चेले साथ रहने वाले आपको बड़े पसंद आते होंगे, उनके साथ वक्त गुजारना बड़ा अच्छा लगता होगा आपको। आपकी महफिलें जब गर्म होती होंगी तो जबान बेकाबू हो जाती होगी, न जाने क्या क्या बकते होंगे, न जाने क्या क्या करते होंगे। मगर याद रखिए, एक दिन है जब सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान आए हैं सब जमा होंगे। ऐसा भयानक दिन होगा कि कुरान कहता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन यौमइदिन शअनुन युगनीह। ऐसा दिन होगा, ऐसा दिन होगा कि भाई भाई से कहेगा हट बाजू मेरे पास ना, आज मैं परेशान हूं। माँ बेटे से कहेगी जा, आज मैं तेरे काम नहीं आने का। बाप कहेगा बेटा जा, आज पीछा छोड़ दे, आज मैं तुझको कुछ ना दे सकूंगी। शौहर बीवी से जुदा हो जाएगा, बाप बेटे से भागेगा,
भागेंगे। ऐसा दिन होगा, कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदू इल्लल मुत्तक़ीन। ये जो दोस्तियां गांठ रखी है आपने ना, जो आपकी महफिलें सजती हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी बातें सुन के आपको हंसी आती है, जिनकी सोहबत में आपको बड़ा मजा आता है, कुरान कहता है क़यामत के मैदान में ये सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, सिवाय परहेजगारों के। सिर्फ परहेजगार आपस में दोस्त रहेंगे, बाकी सब दुश्मन हो जाएंगे। आप मांगना, आप जब नेकियां कम पड़ेगी उन दोस्तों से कहिएगा आप आज हमको छुड़ा लो। जब आपकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, अज़ाब के फरिश्ते आपके पास आ जाएंगे, तो वो जो शराब जिनके साथ पीते थे उनको कहिएगा कि बचा लो मुझको। यकीन जान लो उस दिन वो लोग काम आएंगे जो नेक होंगे, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम माने होंगे, जिन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी, जिन्होंने अल्लाह के बारगाह में सजदे किए होंगे, वो काम आएंगे। इसी वजह से हदीस पाक में आया है कि मैदान क़यामत में जब लोग फंसेंगे तो उनके पास जाएंगे जो बड़े बड़े उलमा हैं। उलमा के पास जाके कहेंगे कि हजरत मेरी शफाअत कर दीजिए, परेशान हूं, डूब जाऊंगा, मैं जहन्नम की वादी में चला जाऊंगा, हजरत मेरी शफाअत कर दीजिए। पहचान नहीं रहे? अरे मैं वो हूं जिसने आपको इस्तिंजा करने के लिए ढेला दिया था। इस्तिंजा का ढेला देने वाला पहचान कराएगा कि हजरत मेरी भी आज मग़फ़िरत करा दीजिए। वो काम आएंगे जो अल्लाह का नाम लेते हैं, वो काम आएंगे जो मालिक का चर्चा करते हैं, वो काम आएंगे जो लोगों की हमदर्दी करते हैं, जिनकी खैर खाई चाहते हैं। जानते हैं जिक्र करना हमारे मालिक को पसंद है। फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरा याद जिक्र करो, मुझको याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नेमतों का कुफरान मत करो, इनकार मत करो। तो पता है, अच्छा हम आपका जब जिक्र करें, मान लीजिए आपके मोहल्ले वाले किसी आदमी ने आपके बारे में अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा आदमी है यार, बड़ा राय बोलता है तो उसके लबों से फूल झड़ते हैं। लोगों के बारे में बड़ा अच्छा ख्याल रखता है, बहुत अच्छा इंसान है। कोई मोहल्ले की गली में कह रहा था ऐसा, आप अपने घर के अंदर थे, कोई दौड़ के आया, उसने बता दिया कि अब फलां आपकी तारीफ कर रहा है। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बताइए? सबको अच्छा लगता है। मेरी कोई तारीफ करे मुझको अच्छा लगे, आपकी करे आपको अच्छा लगे, आपके वालिद करे तब भी आपको अच्छा लगे। पता चला किसी का जिक्र खैर किया जाता है, किसी की तारीफ की जाती है, किसी को अच्छा बताया जाता है, उसको अच्छा लगता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उसका जिक्र खैर कर रहे हैं जो वलियों का सरदार है। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं जो सूफियों का सरदार है, जो सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा आलिम है। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर उसे खबर लग गई तो उसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हम यही तो चाहते हैं कि सरकार बगदाद को खबर लग जाए तो उनको अच्छा लगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनके मालिक को भी अच्छा लगेगा, और मालिक को अच्छा लगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार बगदाद को खबर होती नहीं होती है? भाई जाहिर एक मसला है ना कि हम तो भदोही की सरजमीन पे एक छोटी सी महफिल सजा के उनका जिक्र खैर कर रहे हैं, और वो कहाँ है? बगदाद के अंदर। खबर होगी कि नहीं होगी? आप पूछते हैं सरकार बगदाद से, आका आप ही बताइए, वलियों के सरदार, दुख हरण कर लेने वाले, लोगों को बच्चा अता कर देने वाले रब की रजा से, मुर्दों को जिंदा कर देने वाले, रास्ते चलते थे तो सब्जे उग जाते थे, हिदायत के मीनार, हिदायत की रोशनी कर देने वाले, 70,000 के मजमे को खिताब करने वाले, जिनके मजमे से बड़े बड़े जनाजे उठते थे, जिनके मजमे से लोग तौबा करके जाते थे। आइए उन्हीं से पूछते हैं, सरकार बताइए, हम यहाँ आपका जिक्र कर रहे हैं, हम आपकी याद मना रहे हैं, जश्न गौसुल वरा हमने कर रखा है, लोग यहाँ जमा हैं, आपको खबर होती है कि नहीं होती है? तो बगदाद से आवाज आती है, अरे तुम ये पूछ रहे हो कि हमको खबर होती है कि नहीं होती है? अरे हमारा निगाहों का आलम तो ये है कि अल्लाह के सारे शहर को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई रानी का दाना हो। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान
कुछ सरकारी बगदाद ने कहा कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे राई का कोई दाना हो। खबर का तो ये आलम है सरकारी बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मजमे में सरकार तकरीर कर रहे थे, बड़ा भारी मजमा था। आपको पता है ना कि सरकारी बगदाद का जो तकरीर का मजमा होता था 70,000 से ज्यादा होता था। आज 70 लोग नहीं मिलते। मुझको सबसे अच्छा बयान करने में जुमा में लगता है, मुफ्त में मिल जाते हैं लोग। माशाअल्लाह कम से कम मुसलमानों के अंदर इतना तो सेंस है कि यार चलो नमाजें नहीं पढ़ते हैं मगर जुमा को पढ़ेंगे। इससे लगता है कि इस कौम के अंदर ईमान का जज्बा सलामत है, इस कौम के दिलों में ईमान की रोशनी भरी हुई है। गुनाहगार जरूर हैं, सियाकार जरूर हैं, गुनाह जरूर कर रखा है मगर अल्लाह से लगाव है, मालिक की प्रिय मोहब्बत है, उसके बंदों से प्यार जरूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह यह अल्लाह मौलाना अब्दुल समद ज़ियाई साहब किबला है, बदोई में बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। नौजवानों में नहीं, मैं इंशाअल्लाह हजरत रूह से खाली अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह जो कहूँगा आपके बारे में, जो मुझको मालूमात है वही कहूँगा। मैं बिला वजह की मुबालगा राय नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझको ये पता है कि माशाअल्लाह ये काम कर रहे हैं। जो बद अकीदों के चक्कर में बच्चे फंस रहे थे उनको हिदायत के रास्ते दिखाते हैं, उनको दलीलें बताते हैं। असल में हमारी कमी ये है ना, अपनों की हम सुनते नहीं, गैरों की बहुत तेज सुनते हैं। हमारा हाल ये है, ऐसा हाल है। देखिए घर के अंदर एक बच्चा है, माँ की कहता नहीं, बुढ़िया बैठी रहा, माँ की नहीं सुनेगा, अब्बा की नहीं सुनेगा, भैया की नहीं सुनेगा, और बाहर का कोई फ्रेंड कह देगा तो बहुत तेज सुनेगा। अपने घर में उसकी बैठक जमेगी नहीं, दूसरे के घर में जाके घंटों बैठा रहेगा। अपने घर के बच्चों के साथ दो चार बात नहीं कर सकेगा, दूसरों के बच्चे के साथ घंटों बैठ के गपशप करेगा। अरे कि नहीं दौरे हाजिर में, अरे भैया हम लोगों को बैठा नहीं जाता। हाँ? अपने बच्चों के साथ हमें वक्त स्पेंड करना नहीं आता। वो हमारे बच्चे तरसते हैं कि अब्बा कब बैठेंगे हमारे साथ, कुछ बातें बताएंगे, उनके साथ खेलेंगे, कुछ नसीहत सिखाएंगे, जबकि बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। हदीस का मफहूम है, एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को सबसे अच्छा तोहफा ये मिलता है कि उसको अच्छा अदब सिखाया जाए। जो हमारे बच्चे आज बेअदब है ना, जो बातें नहीं सुनते हैं, जो आवारा लोगों के साथ पड़ जाते हैं, उसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। मोहल्ले वाले को हम देंगे दोष कि मोहल्ले वालों ने खराब कर दिया? जनाब आपने अपने बच्चे को संवारने के लिए क्या किया ये बताइए ना। आप बाहर वालों को क्या दोष देते हैं? पहले अपनी बताइए कि जब आपके बच्चे आवारा फिरते थे तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते थे। जब आपके बच्चे जुआ के अड्डों पे जाकर जुआ खेलते थे तो आपको खबर होने के बावजूद आप कहते चलो यार अभी बच्चा है, सही हो जाएगा। हो गया सही? मुसलमानों, हम जब से जंगल चोर हो गए ना, अपनी जिम्मेदारियां जब से हमने हटा दी है ना, लापरवाहियां शुरू कर दी हैं, घर का माहौल तबाह हो गया है। जिनके महफिल में बैठे अपना सरकार बगदाद की कसम खुदा की ऐसे ज्यादा मेहनती थे ना, मेहनत का आलम ये था कि जब से पैदा हुए थे और सिन्ने शोर में जानकार हुए तब से जो मेहनत शुरू किया आखिरी उम्र तक मेहनत करते रहे। अगर हम जैसे जगह चोटे हो ना तो कभी कामयाबी ना हो, मगर वो ऐसे मेहनती थे, घर में कलेजा था उनके भाई, हिम्मत थी उनके। 16 साल की उम्र थी, वालिद से कहा कि मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए। वालिद है नहीं, यतीम है वो, उनके वालिद नहीं है, इंतकाल फरमा चुके हैं, वालिदा बूढ़ी है। सबसे बड़े यही है सरकारी बगदाद में, पहले मैं पढ़ने जाऊंगा। अब की माँ होती कहती बेटा कहाँ जा रहे हो, मुझको खिलाएगा कौन, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, अरे मैं खाए बगैर मर जाऊंगी, कौन देखेगा मुझे। आज की माँ तो अपने आंसुओं से रास्ता रोक लेती, मगर वो सरकारी बगदाद की माँ थी, कलेजे वाली माँ थी, हिम्मत वाली माँ थी। वो जानती थी कि मेरा बच्चा जिस रास्ते में जा रहा है उस रास्ते में खैर ही खैर है। अगर मैं बच्चे को रोक लूंगी तो न जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बनाने वाला है मिलेगा नहीं मिलेगा।
माँ ने कहा बेटा जाओ, अल्लाह के रास्ते में जाओ, इल्म हासिल करने जा रहे हो ना, अपने नाना की बातें सीखने जा रहे हो, कुरान पढ़ने जा रहे हो, हदीस का इल्म सीखने जा रहे हो, शरीयत जानने जा रहे हो, तो जाओ। अब हमारी मुलाकात क़यामत के मैदान में होगी। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मेहनत का आलम ये था। सरकारी बगदाद गए, डाकू मिले, तौबा किया उन लोगों ने, पता है ना आपको। फिर सरकारी बगदाद पहुंचे, 40 दीनार आपके पास थे, कब तक चलते खत्म हो गए, खाने के लाले पड़ गए, खाने के। आज एक वक्त की रोटी ना मिले ना तो घर के सारे बर्तन टूटे हुए नजर आएंगे। अगर बीवी ने किसी दिन खाना नहीं बनाया तो फिर क्या हाल होगा, समझ जाइए। हमारा मिजाज 7वें आसमान पे होगा और बीवी की हालत पतली होगी। फिर हम न जाने घर में कौन सा तूफान मचाएंगे, वो पता नहीं कौन सा तूफान आएगा, वो तूफान अक्सा आएगा क्या, जाने कौन सा तूफान आएगा। और सरकारी बगदाद पैसे खत्म हो गए और सरकारी बगदाद के खाने के नाले पड़ गए। गए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, बगदाद की गलियों में घूमते हैं, जहां सब्जी फरोश लोग सब्जियां बेचते हैं और जो सब्जियां बेकार समझ कर फेंक देते हैं वहां लोग खा रहे हैं। दजला के किनारे जो घास पड़े हैं उसको खा के अपने पेट की प्यास बुझा रहे हैं। इस तरह इल्म हासिल किया है सरकारी बगदाद ने। कभी इस उस्ताद के पास पढ़ रहे, कभी इस उस्ताद के पास। हाल यह था कि 25 साल तक सरकारी बगदाद तनहा जंगलों में फिरते रहे। किसकी तलाश में? अपने मालिक की तलाश में। हम तो एक टाइम तलाश करने नहीं जाते, मुअज्जिन बुलाता है बाकायदा, आओ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी तरफ आओ। हम कहते क्यों जाए भाई, और ये कहते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं है। तो कामयाबी तरफ बुलाना जाता है, कहाँ जाते हो आप? जब आपको कहा जाता है, बाकायदा अजान में कहा जाता है, अल्लाह का नाम में कहा जाता है कि आओ कामयाबी तरफ, हम जाते हैं? नहीं, हम कामयाबी तरफ जाते ही नहीं है और फिर कहते हैं हम कामयाब क्यों नहीं है। लोग हमको क्यों सता रहे हैं, गालियां क्यों दे रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं? अरे परेशान क्यों नहीं हो गए? अल्लाह के नबी के दौर में एक मुसलमान बताओ जो नमाज ना पढ़ता हो। हमें हुसैन को मारने वाले ना, करबला में जो शहीद हो गए 72 अफराद, एक के बारे में बताओ जो नमाज ना पढ़ता हो। सरकार गौसे आजम को मारने वाले हो ना, उनके मुरीदीन में, उनके चाहने वालों में एक बताओ जो नमाज ना पढ़ता हो। यहाँ तो हाल ये है कि पूरा मोहल्ला नमाज नहीं पढ़ता, पूरी बस्ती नमाज नहीं पढ़ रही है, पूरा शहर नमाज नहीं पढ़ रहा है। बेनमाजी जब इतने होंगे रहमत नाज़िल होगी, अज़ाब आएगा, तोड़े पड़ेंगे। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीना बाज़न बिमा कानू यक्सबून, हम ऐसे ही बाज़ जालिमों पर बाज़ को मुसल्लत कर देते हैं उनके बुरे कामों के बदले में। बुराई किया है तो उन जालिमों पे दूसरे जालिम को मुसल्लत कर दिया जाता है। हम दुख जो झेल रहे हैं ना, जो हम बुराइयां सह रहे हैं, जो हमें दिक्कतें हैं, जो परेशानियां मुसीबतें आ रही हैं, अपना हिस्सा ढूंढिए कि हमारा हिस्सा कितना उसमें है। हमने अपने पांव के नीचे गड्ढे कितने खोद रखे हैं, तलाश करिए, बेपनाह मिलेंगे। और हमारा हाल ये है कि हमारी उंगली जो उठती है उसको दिखाते हैं, अबे अपने को देखना। हमेशा हमारी तनकीद का निशाना दूसरा होता है। पड़ोसी बच नहीं सकता, मोहल्ले वाला बच नहीं सकता, क्लास फेल बच नहीं सकता। जिसको भी हम नापसंद करते हैं, और नापसंद क्यों करते हैं, हमसे आगे जा रहा है। अरे ये कौन सी वजह हुई भैया, तू भी दौड़ आगे जा। मगर क्या कहें, अकल की बदअकली क्या कहें। कोई आगे जा रहा है तो नापसंद, किसी की तरक्की हो गई तो नापसंद, किसी को शोहरत बढ़ गई तो नापसंद, कोई अच्छा इल्म वाला निकल गया नापसंद। अरे ये कौन सी वजह। और जब नापसंद हुआ ना, तो जानते हो क्या निकलता है, मर जाए, इसके बच्चे सब यतीम हो जाएं, घर बर्बाद हो जाए, ब्लैक मनी ला रहा है ये, जाने कैसे कमा रहा है ये, इतना पैसा कहां से आ रहा है इसके पास, बताओ। ऐसे गाड़ी ले रहा है, घर ऐसा बनवा लिया इसने। ये है हमारा दिल, ये दिल नहीं है, पत्थर है, निजासत का टुकड़ा है, निकाल फेंक दिया इसे। ऐसे
ऐसी सोच रखते हैं। हमारे फिक्र का हाल ये है। अरे उस दौर में जो मुसलमान थे ना, जब एक मुसलमान आगे बढ़ता था उनको खुशी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुसलमान भाई आगे जा रहा है। हाल ये था कि कारोबार करते थे, तिजारतें होती थी, दुकानें अगल बगल होती थी। एक दुकानदार कहता था नहीं मैं सौदा नहीं बेचूंगा, जाओ उसके पास से ले लो, उसके पास कोई ग्राहक बेच रहा है। उनका तो हाल ये होता था, अपने भाइयों का ऐसा ख्याल रखते थे। आज हमारा हाल ये है कि दूसरे घर की सारी तिजोरी का माल हमारे पास आ जाए तो अच्छा है। बिस्तर प्लेट के साथ करोड़पति बन गए। हमारा तो हाल इसी का है। हम ख्याली पका पुलाव पकाते हैं, हमेशा ख्याल में पकता रहता है, देख लगी रहती है। हम चाहते हैं बगैर कुछ किए सब मिल जाए हमको। उल्लू के पट्टे है ना, वही कह रहा जंगल चोर है, जंगल चोर कुछ नहीं करना चाहते। बस हम सोच सोच के अपना बड़ा सा घर बनवाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, घर में कार खड़ी करना चाहते हैं और सबसे बड़े वली होना चाहते हैं। सोच सोच के अमल कौन करेगा भैया? वलियों के जो सरदार है, जिनको अल्लाह ने बचपन से वली बनाया है, मादर साथ जो वली है, उनकी मेहनत का आलम यह है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। जिनकी मेहनत का आलम यह है एक पांव पे खड़े होकर 15 साल तक पूरा कुरान एक रकम में पढ़ा है। जो वलियों के सरदार है उनकी मेहनत का आलम यह है। हम फटीचरों का आलम यह है कि हम चाहते हैं कि हम सबसे बड़े वली हो जाए, मुकर्रब हो जाए, सबसे बड़े अच्छे हो जाए। सोच सोच के करेंगे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिल जाए। हमारा हाल ऐसे ही। जाने हम लोग कैसे इंसान हैं, किस कैटेगरी में आते हैं मालूम है आपको? एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम सुफियान सौरी था। सुफियान सौरी एक दिन मस्जिद में गए, पाया पाया रख दिया, बहुत जल्दी से आगे कर दिया। गैब से निदा आई, ए बैल तुझे मस्जिद में और हमारी बारगाह में आने का हक नहीं मालूम है? ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए, कहने लगे या अल्लाह अब मैं इंसान भी न रहा, मैं बैल हो गया। तुझे अदब नहीं आती है नफ्स? तू कैसा है कि मालिक कह रहा है मुझे बैल, तू इंसान बनने के भी काबिल नहीं। फिर जो तौबा की है ना, फिर अल्लाह की बारगाह में ऐसे रोए हैं ना, सजदे कर करके ऐसे जगह किए हैं ना कि आज उनका नाम तारीख की किताबों में चमकता है, उनका नाम लिया जाता है। उलमाए किराम दरसगाह में उनका नाम तासीम से लेते हैं, दिल उनका नाम चूमता है। आप भी पूछिए ना अपने आप से, हम खुद पूछिए आपसे क्यों कहे कि हम बैल भी हैं नहीं हैं? उनको तो कह दिया गया हम क्या हैं भाई? वो तो बड़े भारी आलिम थे, हदीसों का इल्म रखते थे, मुफ्ती थे वो मस्जिद में बेअदब चली गई, मतलब मार दिया ऐसे, तो उनको वो कहा गया हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, हम तो ढंग से रोजे भी नहीं रखते, हमारे काम तो इखलास से खाली होते हैं। हम जो बोलते हैं ये भी नहीं समझते कि हर बोली लिखी जाती है, बस बेधड़क बोले जा रहे हैं, जो समझ में बोले जा रहे हैं। कुरान कहता है वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बोलने से पहले सोचते नहीं, हम बेधड़क बोलते हैं, ज़बानें हमारी एक फीट लंबी है, किसी की बुराई करते हैं तो करते जाते हैं। जो उसके खानदान में ऐब है उसको नहीं मालूम मगर हमको मालूम है, हम बताते हैं। दूसरे को कब्रें खोदना हम जानते हैं, बुराइयों से अपनी जबान गंदी हम करते हैं, चुगलियां हम करते हैं, एक चाय खानों पे गीबतों के बाजार सस्ते हैं। बैठ के देखना कभी जो नहीं बैठते, ऐसी बुराइयां होती है ना, और बुराई से कोई बात खाली होती नहीं, हमेशा थर्ड पार्टी की बात होती है, हमेशा तीसरे की बात होती है। तुम लोग बैठो दो आदमी अपनी बात करो ना, तीसरे की बात क्यों करते हो? मगर नहीं करेंगे, हमेशा तीसरे की बात करेंगे। हमें ना अपनी जबान की परवाह है, ना अपने दिल की परवाह है, ना अपने दिमाग की परवाह है, ना अपने फैमिली की परवाह है, ना अपने बच्चों की परवाह है, ना अपने मुआशरे की परवाह है, ना अपने समाज की परवाह है, ना मुस्लिम कौम की हमदर्दी है। और फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हम पर अजाब क्यों आ रहा है?
हम क्यों मुसीबतों को शिकार हैं? अरे कौम उठ जाओ, जग जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाला है। कहता है कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ। मेरे बंदों से कह दो अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। हाँ, गुनाह किया है आपने, नामे आमाल आपके कितनों ही गंदे क्यों नहीं है। याद है ना आपको, एक ने कितने कत्ल किए थे? 99 कत्ल किए थे, पता है ना। एक को कत्ल करने से कुरान क्या कहता मालूम है? उमा यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदा। जो किसी मुसलमान को जानबूझ के कत्ल कर देगा हमेशा जहन्नम में रहेगा। एक को कत्ल करने का ये आदत है, एक को। उसने कितने किए थे? 99 मारे थे। डकैत था वो, हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। आज भी अकड़ अकड़ के चलते हैं लोग ना, जिनको अल्लाह ने जरा बलवान बना दिया, कुछ पैसे दे दिए अल्लाह ने उसको, तो उसकी रस्सी ढीली हो गई, सांड की तरह जा रहा है वो, किसी को समझता ही नहीं है। जब बोलता है तो गाली बकता है, कमजोरों को सताता है, मजा आता है उसको। कमजोरों को सताने में, उनको गालियां बकने में, इस तरह कहीं मजा आता है उसको, किसी को समझता नहीं है वो भी समझ रहा था। वो 99 कत्ल कर डाले थे उसने। फिर आखिर में अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली, सोचने लगा यार मैं कत्ल तो कर लिया इतना, अब जब मर जाऊंगा तो क्या होगा। इसका मतलब ईमान वाला था, उसके दिल में ईमान की रोशनी थी, उसको पता था कि जो कुछ किया है उसका भुगतना होगा, हिसाब देना होगा। अब बड़ा फिक्रमंद हुआ, मैं क्या करूं, अकड़ लिया मैं, अकड़ के चल लिया मैं, जुल्म कर चुका मैं, लोगों को सता चुका मैं, 99 कत्ल कर चुके, अब क्या करूं मैं। जब परेशान हुआ तो वहां गया जो परेशानियां हल करते हैं। अगर हमारी कौम भी वहां चली जाए जो परेशानियां हल करते हैं ना, तो न बदअकीदों का कोई मसला हो, न जाहिल पीरों कोई मसला हो, किसी का मसला ही नहीं रहे। जब भी फंसे उनके पास चले जाएं जो हल करते हैं, तो मामला ही सुन जाए। तो जब फंसा हो ना, तो पहले तो वही पड़ गया एक ऐसे के चक्कर में जिसको पता नहीं था। आजकल जाहिल लोग पीर बन बैठते हैं ना, मौलाना बन बैठते हैं, और बड़े बड़े बाल रख के, बड़ी बड़ी टोपी लगा के कोई मौलाना थोड़ी बनता है, जाके मदरसे में रगड़ना पड़ता है। आपने क्या देखा है अभी? आप सोचते हैं कि मौलाना बड़ा बोलता है, अरे मियाँ जानते हो रात के 2-2, 3-3 बजे पढ़ा हमने, कोई मुबालगा नहीं इसमें। रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई की है, रातों को जाग कर पढ़ा है हमने। आप क्या समझते हो आसानी से पढ़ लिया सब? ऐसा नहीं आता है। बचपन में लोग जो भागते हैं ना, सबसे ज्यादा पढ़ाई से भागते हैं, ठीक है। तो आज तो हाल ये है कि बस दाढ़ी बढ़ाई, हमारा अच्छी बात है, दाढ़ी बढ़ाई और बड़ा सा छोटा रखा, बड़ी टोपी लगाई, मौलाना बन गए, शाबा बाना है, वहां बांध गए, जिब्बा पहन के मौलाना बन गए, बड़ा आसान काम है। तो वैसे था कोई, मैं नहीं कहूंगा कैसा था वो, भरा वो डकैत गया उसके पास, कहा जानते हो बड़ा मसला है। क्या मसला है? यार मुझसे बड़ा जुर्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ है? कहा मैंने 99 लोगों को मार दिया है। अब वो जो सामने वाला हक्का भक्का, बार में कितना बड़ा आतंकवादी गुट हमारे सामने आया है, कितना बड़ा मतलब जो है जालिम और सख्त दिला गया है। तो उसने कहा मसला जानते क्या है कि मैंने 99 कत्ल कर लिए हैं, चाह रहा हूं कि सुधार जाऊं, तो क्या अल्लाह मुझको माफ करेगा? सामने वाले को मसला पता ही नहीं था। उसने कहा ना, इतने तूने मार दिए, इतना खून बहा दिया, तेरी बख्शिश नहीं होगी, तू कुत्ते की मौत मरेगा। शायद कहा हो वैसा, नहीं शायद ऐसा कहा, बहुत भयानक कहा उसको गुस्सा और आया। जो सामने वाला था, जाहिर सी बात है भले वो तौबा करने आया था, लेकिन पता है वो था पहले वो भयानक करने, जालिम था ना वो। हाँ, इसीलिए समझ जाइए जो जालिम होता है सुधरने के बाद भी अगर गुस्सा दिलाया गया उसको, तो हो सकता है फिर जुल्म कर बैठे। कोई बात नहीं है। हाँ, जो जवानी में लोग गलतियां किए होते हैं, लोगों को हड़काए होते हैं, अब बूढ़े हो गए, नमाजी हो गए, लेकिन गुस्सा दिलाइए तो देखिए क्या होता है, वही जवानी वाला हाल आता है।
جب کہا میری بخشش نہیں ہوگی غصہ اور آ گیا اس کو. کہا جب 99 ہے تو 100 پورا کرتے ہیں, اس کو بھی دے دیا. جب 100 پورے ہو گئے, مگر جو دل میں خیال درد رہا تھا کہ یار کیسے میں بخشا جاؤں گا, ایسے تو چلے گا نہیں, بخشا جاؤں کم سے کم, اللہ معاف تو کر دے. پھر ایک کے پاس گیا, وہ جو گیا اس کے پاس وہ بہت بڑا عالم تھا. اللہ نے اس کو عقل دی تھی, محبت کرنا جانتا تھا, اپنے رب کے پہچان رکھتا تھا. وہ معلوم تھا اس کو کہ لوگوں کے گناہ میرے مالک کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے. پوری زمین گناہوں سے بھر جائے, اس کی رحمت کا ایک چھینٹا سارے گناہوں کو دھو دے گی. اس کے پاس آیا, کہا مولانا جانتے ہو 100 قتل کر دیے میں نے. مولانا میں نے 100 قتل کر دیے, کیا مالک معاف کرے گا مجھ کو؟ ارشاد فرمایا 100 کیا, تیرے گناہ سے زمین بھر جائے تو بھی معاف کرے گا وہ. بس معافی مانگنا سیکھ دو, معافی مانگنا تو سیکھ لے. کیسے معافی مانگوں؟ کہا فلاں علاقے میں ولیوں کی ایک جماعت ہے, ایک بستی ہے, اللہ کو پہچاننے والوں کی, اللہ کو جاننے والوں کی, اللہ کا ذکر کرنے والوں کی, اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کرنے والوں کی ایک جماعت ہے, وہاں چلا جا, ان کے ساتھ دعا کر لے, اللہ رب العزت انشاءاللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. چلا وہ پورا واقعہ مجھے پتا ہے مولانا, میں نے کئی بار سنا ہوگا, میں نے ان کی زبان سے کئی بار سنا ہے, میرے انداز میں سن لیجیے. میں نے وہ چلا راستے میں, وہاں پہنچنے سے پہلے مر گیا, موت آ گئی, انتقال ہو گیا اس کا. فرشتے اترے, عذاب کے بھی رحمت کے بھی. عذاب کے فرشتوں نے کہا میں لے جائیں گے, رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے. عذاب والوں نے کہا تم کیوں لے جاؤ گے, اور رحمت والوں نے کہا کہ توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا یہ. عذاب والوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس نے 100 قتل کیے. تو اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کہا مالک تو فیصلہ کر, یہ کہہ رہے ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. تو مالک نے کہا اچھا ایسا کرو زمین ناپ لو تم لوگ, زمین ناپو, جہاں نکلا تھا, جہاں سے نکلا تھا وہاں سے لے کے وہاں تک ناپو, اور جہاں پہنچا ہے اگر یہ ان کے قریب پہنچ گیا ہے تو رحمت والے, اگر قریب نہیں پہنچا ہے تو عذاب والے لے جاؤ. اچھا زمین کی نپائی شروع ہوئی, ادھر مالک نے زمین سے کہا تو سمٹ, جسے اللہ پیار کر لے, جسے مالک چاہ لے, جسے ہمارا رب بخشنا چاہے, ارے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کی رحمتوں کی رکاوٹ کون کر سکتا ہے؟ جسے ہمارا مالک بچانا چاہے اسے کون گرفتار کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم میرے مالک کی مرضی تھی, ہمارے رب کو پیار آ گیا تھا اس پر, اس گناہگار کو مالک نے چاہ لیا تھا. ان سے تو کہہ رہا ہے زمین ناپ, زمین سے کہا تو سمٹ جا, ادھر والی زمین سے کہا سمٹ جا, زمین سمٹ گئی, ناپا گیا تو ادھر قریب پہنچ چکا تھا, رحمت کے فرشتے اس کو لیتے ہیں. اسے پتا چلا کہ جب آپ کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو علماء کے پاس آئیے, جاہل پیروں کے پاس مت جائیے, آپ فسنے مت جائیے, آپ عقل والے ہیں آپ, اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, آپ بدعقیدوں کی بات کیوں سنتے ہیں بھائی؟ جانتے ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اگر کہیں پر کوئی آدمی نکلا, اس نے کہا میں نبی ہوں, ٹھیک ہے, تو محلے کے 4 لوگ گئے پھٹ سے, کہا چلتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں اگر تو نبی ہے تو چل معجزہ دکھا. امام اعظم نے کہا یہ جو 4 نکلے تھے نا پوچھنے کے لیے, یہ سب کافر ہو گئے, اسلام سے نکل گئے. انہوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہ لوگ پوچھنے نکلے دلیل بتا, تو نبی کیسے ہے, معجزہ دکھا, پھر یہ کافر کیسے ہو گئے؟ ارشاد فرمایا اگر رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہوتا تو کبھی نہ جاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے, پورا بھروسہ ہوتا, دل جم گیا ہوتا, کبھی نہ جاتے ہیں. تو مسلمانوں اگر آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ ہم جس مذہب پہ ہیں وہ سچ ہے, جس مذہب کو مانتے ہیں وہ سچ ہے, تو آپ بدعقیدوں کے پاس جاتے کیوں ہو, ان کی بات سنتے کیوں ہو؟ ہم کو جانتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اپنا ایمان بچانا ہے. عمل کو ہم کھو ہی چکے ہیں, عمل کا ہمارا جو حال ہے معلوم ہے نا آپ کو, ہمارے عمل کا جو حال ہے, من آنم کی من دانم, میں کیا ہوں میں جانتا ہوں, کوئی جانے نہ جانے میں جانتا ہوں نا.
کہ میں کیا ہوں؟ پر ایمان تو ہے، بھلے عمل نہیں ہے، ایمان تو ہے، تو اس ایمان کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس ایمان کی حفاظت جڑ پکڑ کے کریے اور ہمیشہ کریے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سچی توفیق عنایت فرمائے، علماء کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ سے محبت عنایت فرمائے، اور جن کو اللہ چاہتا ہے ان سے محبت عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ